Good morning to all the students. Your subject is biology, class 9th, chapter health and diseases, part 11, learning topic, prevention of some specific diseases. Prevention of some specific diseases, कुछ विशेष प्रकार के रोगों की रोकथाम। कुछ विशेष प्रकार के रोगों की रोकथाम में आपको सबसे पहला फर्स्ट लाइन जो है वो लिखता हुआ है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। फर्स्ट टाइम कहता है कि दवा से परहेज भला, दवा से परहेज भला। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसको एक लाइन में कह सकते हैं। परहेज कीजिए किसी रोग में, डॉक्टर के सजेशन जो सजेस्ट करे, बतलाए, उसको मानिए, यही है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन मानिएगा, दवा से भी अच्छा काम करेगा प्रिवेंशन। जैसे मान लिया कि आप यू आर सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, देन डॉक्टर सजेस्ट यू हैव नॉट टेक the food which contain more fat, more proteins, etc. But you disobey their order, so you are suffering from this type of disease. So here writer expresses in the form of it, prevention is better than cure. Prevention is better than cure. So I also explain you, prevention is better than cure. बतलाता हूँ आगे। Specific prevention of infectious diseases, लिखा हूँ prevention of some specific diseases. Specific prevention of infectious diseases का prevention of some specific infectious diseases, यहाँ infectious भी जोड़ देना होगा। infectious diseases जोड़ देना होगा। prevention of some specific infectious diseases, विशेष प्रकार के संक्रामक रोगों की रोकथाम उसी में बताया। ठीक, तो वाक्य है, बतलाते हैं। ताकि specific prevention of some diseases, the factor responsible for a specific prevention of some infectious diseases is production of new substance in the body with the respect of other substances, like some foreign particles. Our body is responsible for producing antibodies. Antibody is totally made up of immune response. Antibody formed when antigens enter in the body. तो एंटीजेंस बतलाते हैं क्या? व्हाट इज एंटीजेंस? एंटीजन क्या है? इट इज एक्सटर्नल सब्सटेंस
एंटीजन के बारे में बता रहा हूं। इट इज ए एक्सटर्नल सब्सटेंस, इट इज एन एक्सटर्नल, इट इज एन एक्सटर्नल सब्सटेंस, substance which is destroyed by the body, destroyed, T-E-S-T-R-O, which is destroyed, R-O-I-D, destroyed, T-E-S-T-R-Y-O-D, destroyed by the, which is destroyed by the body cell, शॉर्ट में इतना ही याद रखना है एंटीजेंस के बारे में। शॉर्ट में एंटीजेंस के बारे में इतना ही आपको याद रखना है। इट इज एन एक्सटर्नल सब्सटेंस, ये एंटीजन जो होता है बाहरी पदार्थ होता है। कोई भी बाहरी पदार्थ आपके शरीर में प्रवेश करना चाहे, प्रवेश करे, तो उसको हम कहेंगे, उस बाहरी पदार्थ को कहेंगे एंटीजेंस। तब उस हम बाहरी पदार्थ को क्या कहेंगे? एंटीजेंस कहेंगे। इसे लिखें, इट इज एन एक्सटर्नल सब्सटेंस व्हिच इज डिस्ट्रॉयड बाय द बॉडी सेल, जो खत्म कर दिया जाता है शरीर के कोशिकाओं के द्वारा। शरीर में जो कोशिकाएं हैं, बहुत तरह की कोशिकाएं हैं, वह एंटीजेंस को खत्म करने का काम करेगा। और वही कहता है कि the new substance which is produced in the body, which is produced in the body to fight against antigen called antibody, ये लिखा है यहाँ से कि the new substance which is produced in the body cells, which is produced in the body, नए कोशिका जो आपके शरीर में बनता है। पता है, the new substance, नया पदार्थ जो आपके शरीर में बनता है to fight against antigens, और वह एंटीजेंस के विरुद्ध में लड़ने का काम करता है, वही कहलाता है एंटीबॉडी, The relation between antigens and antibody called immune response और immune system। पूछेगा लड़का ही पूछ सकता है, what is immune response, what is immune system। immune response बतलाते हैं, immune response, what is your immunity, immune, I-M-M-U-N, immune, response, oblique immunity, immune response, oblique immunity। बच्चे पूछ सकते हैं व्हाट इज इम्यून रिस्पॉन्स, व्हाट इज इम्यूनिटी, बार बार इम्यूनिटी की चर्चा आता है, तो इसके बारे में बतलाता है, इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यूनिटी के बारे में बतलाते हैं। इट इज एबिलिटी ऑफ द बॉडी, immune response or immunity is the ability of the body to produce antibody against several types of antigens. It is the ability of the body to produce antibodies against several types of antigens and safe from
different types of diseases is called immune response or immunity. Is called immune response or immunity. Hey, immune response, formation of antibody antigens and check the body, prevents the body prevents the body against suffering from various types of diseases called immune response or immunity. ठीक, इम्यून रिस्पॉन्स और इम्यूनिटी बताया। इसके बाद आपको जाकर के इसके बाद बताते हैं आगे which कहता है कि which medicine is responsible for prevention of some specific infectious diseases. तो उसके लिए वैक्सीन, VACCINE वैक्सीन उसके लिए है। वैक्सीन कहता है कि कोई पूछेगा था कि which chemical substance is responsible for checking up the prevention of some specific disease, तो उसका आंसर देंगे वैक्सीन। वैक्सीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग अप और प्रिवेंशन ऑफ सम स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीजेज, कुछ विशेष प्रकार के संक्रामक रोगों के रोकथाम के लिए जो औषधि काम में आती है वह है वैक्सीन। वह क्या है? वैक्सीन। तो वैक्सीन पूछेगा कि वैक्सीन क्या है, तो इसमें नए नए टर्म है, इसको बतलाना जरूर। वैक्सीन क्या, व्हाट इज वैक्सीन बताते हैं। वैक्सीन क्या है? VACCINE वैक्सीन। इसको टीका कहते हैं। टीका कपार में माथे में टीका लगाना नहीं, यह टीका बॉडी में ओरली दिया जाता है या इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। द मेडिसिन विच इज यूज्ड बाय ए डॉक्टर to a patient, to an unhealthy person from orally or by injection inside the body is called vaccine. It's called vaccine. तो वैक्सीन के बारे में थोड़ा सुनिए, क्लियर कट क्या वैक्सीन से। ठीक, बतलाता हूँ वैक्सीन के बारे में। इट इज ए केमिकल सब्सटेंस। वैक्सीन जो होता है वह क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है, रासायनिक पदार्थ होता है वैक्सीन। ठीक, बतलाते हैं, एक सेकंड करके रुक करके वैक्सीन के बारे में। अभी नोट कर लीजिए थोड़ा सा, तो आगे बतलाते हैं। ठीक, ए वैक्सीन द प्रिपरेशन ऑफ ए वैक्सीन is a chemical substance SUBSTANCE। ठीक, ये वैक्सीन इज ए केमिकल सब्सटेंस। वैक्सीन टीका जो होता है वह एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। एक प्रकार का रासायनिक क्या है? पदार्थ है। which is prepared जो तैयार किया जाता है। which is prepared of जो तैयार किया जाता है वीकेंड, WEAKNED वीकेंड infectious agent
एजेंट, वीकेंड इन्फेक्शियस एजेंट और their products that can be injected or given orally to prevent some diseases, to prevent a specific diseases, ठीक। आगे वैक्सीन बतलाया था दवा, इसके बाद बताया कि व्हाट इज वैक्सीन, इसके बाद डील करना कि व्हाट इज वैक्सीन, वैक्सीन है क्या, टीका किसको कहते हैं। ए वैक्सीन इज ए केमिकल सब्सटेंस, अरे वैक्सीन या टीका जो होता है एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है, विच इज प्रिपेयर्ड, जो तैयार किया जाता है, जो क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, ऑफ वीकेंड इन्फेक्शियस एजेंट, वीकेंड मीन्स कमजोर, वीकेंड मीन्स कमजोर संक्रामक कारकों के द्वारा, कमजोर संक्रामक रोगाणुओं के द्वारा, रोग के कारकों के द्वारा, या देयर प्रोडक्ट्स, उसके उत्पाद के द्वारा, वो जो उत्पाद जो दे उससे, दैट कैन बी इंजेक्टेड, जो सुई के रूप में आपको दिया, इंजेक्ट किया जाए, आपके शरीर के भीतर में प्रवेश किया जाए, और गिवन ओरली, या मुख के द्वारा दिया जाए, मुंह के द्वारा दिया जाए आपके शरीर में, टू प्रिवेंट स्पेसिफिक डिजीज, और जब इंजेक्शन के रूप में दिया जाए या ओरली दिया जाए मुंह के द्वारा, और यह आपको शरीर में जाकर के विशेष प्रकार के रोगों की रोकथाम करे, तब वो उसी को कहते हैं वैक्सीन, उसी को कहते हैं वैक्सीन, टीका, ठीक। और थोड़ा सा बचा हुआ रहा है एंटीबॉडी के लिए, एक लाइन और बचा हुआ रह गया था एंटीबॉडी के लिए, जो बगले में लिख देंगे, the product secreted by bacteria and viruses is also known as an antibody, the chemical कहते हैं, the chemical substance, the chemical substance secreted by, आगे करता है या क्या, इसको छोड़ देते हैं, एक कट जा रहा होगा, the chemical substance secreted by bacteria and viruses called antibody। एंटीबॉडी का दो डिफिनेशन बताया, याद पड़ गया, याद पड़ जाता बीच बीच में, तो उसको एक बार लिख देते हैं कि आपको काम आएगा। द केमिकल सब्सटेंस सेक्रेटेड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस कॉल्ड एंटीबॉडी, जीवाणु या विषाणु के द्वारा रासायनिक पदार्थ जो स्रावित किया जाता है, छोड़ा जाता है, उसको भी हम लोग एंटीबॉडी की श्रेणी में रखते हैं, उसको भी हम लोग एंटीबॉडी की श्रेणी में रखते हैं, याद रखना होगा। चलिए तो बताए वैक्सीन, और वैक्सीन, सम वैक्सीन अवेलेबल, सम वैक्सीन VACCINE, some vaccine is available, some vaccine is available, AVAILAB, available for some infectious diseases, some specific
infectious diseases, infectious diseases, लाइक कौन में किसका किसका वैक्सीनेशन उपलब्ध है वो लाइक बतलाते हैं कौन कौन सा का लाइक है ट्यूबरक्लोसिस फर्स्ट में इसका वैक्सीनेशन उपलब्ध है ट्यूबरक्यूलोसिस फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट में ट्यूबरक्लोसिस इसका भी जो है वैक्सीनेशन अवेलेबल है। इसके बाद है जाकर के वैक्सीनेशन है टेटनस का भी टेटनस तीसरा डिप्थीरिया डिप्थीरिया का भी ठीक है ना। फर्स्ट में होगा ट्यूबरक्लोसिस सेकंड में टेटनस थर्ड में डिप्थीरिया का भी है वैक्सीनेशन अवेलेबल है ना। हुफिंग कफ कुकुर खांसी WHOOPING हुफिंग कफ कुकुर खांसी का भी। और पांच में जो है पांचवा में जो है और पांच और छह भी होगा। पांच में जा करके पोलियो का भी है। और सिक्स में लिख देता हूं चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स भी लिख सकते हैं। स्मॉल पॉक्स का अटेगा ही नहीं क्या कट जाता है इसलिए यहां से बताते हैं। सिक्स में स्मॉल पॉक्स ETC इतना जो है ना नोट कीजिए। तो रुक जाता हूँ एक सेकंड तब इरेज करेंगे आपको इसको स्मॉल पॉक्स सम लिखा सम वैक्सीन इज अवेलेबल कुछ जो है ना टीका उपलब्ध है फॉर सम स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीजेज कुछ विशेष प्रकार के संक्रामक रोगों के विरुद्ध जैसे पहला ट्यूबरक्लोसिस टीबी के लिए टेटनस के लिए डिप्थीरिया के लिए हुफिंग कफ के लिए पोलियो के लिए और स्मॉल पॉक्स के लिए और भी डिजीज के लिए है वैक्सीनेशन अवेलेबल लेकिन कम ही लिखा गया। ठीक इसको नोट कीजिए एक सेकंड में। तो इरेज करते हैं इसके बाद और कुछ बताएंगे। चलिए इरेज करते हैं इसको। और बतलाते हैं आपको PPP ट्रिपल P इसको कहते हैं पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन पल्स पोलियो प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पल्स पोलियो प्रोग्राम का ही इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नहीं पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन है। पल्स पोलियो प्रोग्राम का ही PPP है ना। पल्स पोलियो प्रोग्राम PROGRAMMAE पल्स पोलियो प्रोग्राम PROGRAMME लिखिए MME पल्स पोलियो प्रोग्राम
है ना, ट्रिपल पी, पी। पल्स पोलियो प्रोग्राम इज in India comes in very long time ago for the eradication of polio. Polio is a type of viral disease. Polio is an example of viral disease. During this disease, muscles and nerves are affected during and causes paralysis. पैरालाइसिस कॉज करता है। इसमें मसल्स और नर्व्स कमजोर पड़ जाते हैं और जाकर के पैरालाइसिस हो जाता है पोलियो में। ठीक बताया थे आपको कि वायरल इन्फेक्शन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है पोलियो वायरस। इसके लिए याद रखना होगा पोलियो वायरस। इसके लिए प्रचार प्रसार वो भारत में बहुत ही चल रहा। पोलियो को खत्म करने का अभी तक पल्स पोलियो प्रोग्राम के माध्यम से 5 वर्ष के बच्चों को 2 ड्रॉप दिया जाता, 2 बूंद जिंदगी की पल्स पोलियो प्रोग्राम में, और ओरली 2 बूंद उसके जीभ पर दे दिया जाता है, जिससे कि इरेडिकेशन हो जाए पल्स पोलियो का, और पल्स को पोलियो उसको रोग कभी नहीं हो, पोलियो खत्म हो जाए। इसके बाद है आपको स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की चर्चा नेक्स्ट क्लासेज में यहीं पर रोक दिया जाता है। दैट्स ऑल। आई इनवाइट